Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel. Students, today I am going to discuss the poem Dust of Snow with all of you. So in this poem I am going to discuss about author, title, theme, explanation and central idea with all of you. As you can see the title Dust of Snow, it means that in this poem the poet has depicted the importance as well as the effect of dust of snow in his life. This poem was published on 1923 in the book New Hampshire. So New Hampshire is a poetic collection that is authored by the poet Robert Lee Frost, and this poem was published in that poetic collection. So let's discuss about the author. So this poem was actually written by Robert Lee Frost, and he was an American poet. He was admired for his depiction of the rural life of New England, his command of American colloquial speech and his realistic verse portraying ordinary people in everyday situation. And he is the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. So now we can say that Robert Lee Frost was a very prominent poet in USA. He was nominated for Nobel Prize in Literature 21 times, and he was named Poet Laureate of Vermont also. So this was all about the poet. Now let's discuss about the poem. So this poem, as we can see the title Dust of Snow. So in this poem the poet has juxtaposed two fundamentals, that is human complexity and animal simplicity. Juxtapose मतलब किसी दो विरोधी चीज़ों को एक साथ रखना in a compact and symbolic form. So this poem is a symbolical poem, and in this poem the poet has discussed about the simplicity of animal and the complexity of human mind. So in this short poem we will see that Robert Lee Frost has thrown light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things. तो इस पोएम में पोएट ने क्या डिस्कस किया है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों का कितना बड़ा असर पड़ता है, छोटी छोटी इंसिडेंट का हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता है, उसको राइटर ने डिस्कस किया है. सो इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्कस्ड द साइलेंट कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन्स, healing power of nature in helping human to get rid of negative thoughts, as well as the significance of small events in our life. So I hope that with this introduction now you are getting the idea about the poem. So now let's see the explanation of the poem line by line. So the starting lines are: the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So what is the meaning of dust of snow? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो छोटे छोटे कण होते हैं स्नो को, उसे बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमलॉक ट्री? इट इज़ अ पॉइजनस ट्री. इट इज़ हैविंग स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एंड this tree, that is a poisonous tree, it is found in mountain area. In the starting the poet is in a very gloomy mood. He was not feeling well, he was feeling negative, or you can say pessimistic, and he was standing under a hemlock tree. This hemlock tree was laden with snow. अचानक से क्या होता है, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, the poet is standing under a hemlock tree and a crow was sitting on the tree. अचानक से क्या होता है, जो क्रो है वो ट्री की टहनी को, ब्रांचेस को शेक करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्नो थी इस ट्री में वो पोएट के ऊपर गिर जाती है. सो नाउ व्हाट हैपेंस? has given my heart a change of moon and saved some part of a day I had rued. So what is the meaning of rued? Rued मतलब पश्चाताप करना, जो चीज़ें हो गई हैं उन पे. To repent of some past action or event, जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पे पश्चाताप करना, इसको हम क्या बोलते हैं? rued. So now when the poet felt the touch of the snow, his heart was totally changed. उसके जो मन में चल रहा था, जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, वो डाइवर्ट हो जाते हैं और उसका मूड चेंज हो जाता है. तो उसे क्या रियलाइज़ होता है? उसे अचानक से रियलाइज़ होता है दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, ही वॉज वेस्टिंग हिज डे, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग वेरी नेगेटिव. और अब वो क्या डिसाइड करता है? अब डिसाइड करता है कि जो भी दिन का बचा हुआ पार्ट है, जो भी बचा हुआ दिन है, अब उसे स्पॉइल नहीं करेगा. So he decided that he will not forget the regrets of his life. So now he decided to be positive
and he decided that he will not waste his time, he will not waste his day in thinking negative. तो अब उसने क्या डिसाइड किया, अब उसने ये डिसाइड किया कि वो अपना दिन नेगेटिव थिंकिंग में वेस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या देखते हैं इस पोएम में, हम देखते हैं कि एक छोटी सी इंसिडेंट क्या थी कि जो स्नो थी वो पोएट के ऊपर गिरी और उसकी वजह से उसकी जो थिंकिंग थी, उसका जो मूड था वो पूरी तरह चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव सोचने लगता है। तो यहाँ पे पोएट ने हमें यही मैसेज दिया है कि हमारी लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट का भी बहुत बड़ा रोल है और बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हमारी लाइफ में ये ले आ सकते हैं। सो नाउ जस्ट सी द एक्सप्लेनेशन of the poem so that you can write the answer also. It will help you in framing the answer, as well as it will help you in MCQ based question on the basis of extract from the poem. So the poet was in a gloomy mood and he was feeling depressed. जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में poet काफ़ी gloomy था, depressed feel कर रहा था और वो एक ट्री के नीचे खड़ा होता है, that was laden with the snow. अचानक से क्या होता है, सडनली अ क्रो दैट वाज सिटिंग ऑन द हैमलॉक ट्री शुक द ट्री। अभी अचानक से क्या होता है, एक क्रो जो कि हैमलॉक ट्री पे बैठा होता है वो क्या करता है, उस ट्री को शेक करता है, उस ट्री की ब्रांचेस को शेक करता है। एंड व्हेन द पोएट फेल्ट द सडन शॉर ऑफ कोल्ड एंड सॉफ्ट स्नो दैट वाज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट। अब क्या होता है, जैसे ही पोएट को स्नो का टच फील होता है, स्नो को वो फील करता है, तो क्या होता है, इट चेंज हिज मूड एंड रिमूव नेगेटिव थॉट फ्रॉम हिज माइंड। तो उसके माइंड से जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो हट जाते हैं। अब उसे क्या रियलाइज होता है, ही रियलाइज द फैक्ट दैट ही वॉज स्पॉइलिंग हिज टाइम एंड डिसाइडेड टू फॉरगेट द रिग्रेट ऑफ हिज लाइफ एंड सोरो to follow the path of feeling of the inner soul by enjoying the remaining part of the day. So the sentence means that now the poet decided that he will utilize the remaining part of the day. He will not think negative, now he will be positive and he will enjoy the remaining part of the day. So हम क्या देखते हैं इस पोएम में, हम देखते हैं that a good act by crow left the suicidal person spirit causing his to change his mood about killing himself. तो अब यहाँ पे जो पोएट हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था वो सिंबॉलिक है। हैमलॉक ट्री जैसे कि मैंने आपको बताया पॉइजनस था, तो कहीं ना कहीं ये किसी पर्सन के जो कि एक पैसिमिस्टिक पर्सन है, जो कि नेगेटिव सोच रहा है, उसके सुसाइडल अटेम्प्ट को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्रो जो कि एक नेगेटिव इमेज मानी जाती है, उसे बैड ऑमेन माना जाता है, उसकी वजह से एक पर्सन जो कि काफ़ी नेगेटिव सोच रहा था, उसके सुसाइडल अटेम्प्ट को, उसकी नेगेटिव थिंकिंग को वो पूरी तरह डाइवर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। और हम ये भी देखते हैं कि क्रो के स्मॉल एक्ट्स से उस मैन की जो लाइफ है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आ जाता है, उस मैन की जो थिंकिंग है वो काफ़ी इनलाइटेंड हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। तो अब हमने इस पोएम में क्या देखा, हमने इस पोएम में कई सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें देखी। हमने ये देखा कि इस पोएम में पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को काफ़ी अनकन्वेंशनल मैनर में प्रोजेक्ट किया है। जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने क्रो को, जो कि ऐसी बर्ड है जिसे काफ़ी बैड ओमेन माना जाता है, डेथ और फियर का, उसे अपनी पोएम में एक इमेज की तरह यूज़ किया है। और सेकेंड उन्होंने इमेज क्या यूज़ की है, हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री जो कि काफ़ी पॉइजनस प्लांट माना जाता है, यहाँ पे भी पोएट ने इसे यूज़ किया है। हैमलॉक ट्री को क्यों यूज़ किया है, हैमलॉक ट्री को यूज़ किया है ताकि पोएट सैड थॉट्स को सिग्निफाई कर सके, सैड थॉट्स को सिंबलाइज कर सके। तो अब हम यूजुअली क्या देखते हैं, हम यूजुअली देखते हैं कि जो भी पोएट्स पोएम में इमेज यूज़ करते हैं वो काफ़ी अच्छी यूज़ करते हैं। जैसे कि वो काफ़ी ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, वो फ्लावर्स से लैडन प्लांट्स की बात करते हैं। अगर बर्ड्स की बात की जाए तो वह पॉजिटिव बर्ड्स की, पॉजिटिव इमेज की बात करते हैं, जैसे कि पैरट। बट हम बहुत कम देखते हैं कि किसी पोएट ने अपनी पोएम में हैमलॉक ट्री की बात करी है या क्रो की बात करी है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि पोएट ने यहाँ पे कन्वेंशंस को तोड़ना चाहा है। ही हैज़ ट्राइड टू ब्रेक डाउन द कन्वेंशंस अबाउट द सर्टेन एसेंस ऑफ नेचर। हमारा भी मानो तो जैसे हम मानते हैं कि कैट को कि एक नेगेटिव इमेज है, हम क्रो को मानते हैं, हम आउल को मानते हैं एक नेगेटिव इमेज। तो यहाँ पे राइटर ने इस
कन्वेंशन को, इस थिंकिंग को ब्रेक करने की कोशिश करी है। उन्होंने क्या कहने की कोशिश करी है? द पोएट हैज़ ट्राइड टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट वी सी द वर्ल्ड नॉट एज हाउ इट इज़ बट एज हाउ वी वांट टू से इट। तो यहाँ पे पोएट क्या दिखाना चाहते हैं कि ये दुनिया हमें जैसी है वैसी नहीं दिखती, बल्कि हम जैसा देखना चाहते हैं ये हमें वैसी दिखती है। सो इन दिस पोएम वी हैव सीन दैट द पोएट हैज़ यूज्ड टू नेगेटिव इमेजेस, crow and the hemlock tree, as the carriers of positivism and strength in the life of the poet, because he was feeling very negative, but after the act by the crow he started feeling very positive. So now let's discuss about the symbolism in the poem. As we have seen, the poet has used two negative images, the crow and hemlock tree. So basically crow is considered as an omen, omen मतलब अपशगुन माना जाता है, and hemlock tree is poisonous. So both the symbols of death and represent sorrow and depression felt by the poet in this materialistic world. तो ये दोनों symbols जो है वो sorrow और death को represent करते हैं, that is felt by the poet. On the other hand, the dust of snow is the symbol of natural joy and energy. अगर दूसरी इमेज की बात की जाए जो dust of snow है वो क्या represent करता है, वो क्या symbolize करता है? नेचुरल जॉय और एनर्जी को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? that the poet who was feeling sad and depressing, he entered into the time full of joy and optimism when he felt the touch of the snow over his head. So he has used in this poem an unconventional tree and the bird in order to contrast them with joy in form of the snow. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि पोएट ने अनकन्वेंशनल ट्री और बर्ड को कंट्रास्ट किया है, दो नेगेटिव इमेजेस को एक साथ यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हेमलॉक ट्री और क्रो जो है वो नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव मैसेज देती हैं, और जो स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो है, वो क्या है? जॉय को सिम्बलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों को कंट्रास्ट किया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? दैट द सडन शॉर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ चेंज द पोएट्स मूड। हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेसिंग हो जाते हैं, कोई हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या होता है? हम नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन कोई छोटी सी इंसिडेंट ऐसी हो जाती है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग पूरी चेंज हो जाती है, हमारा माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है और हम नेगेटिव थिंकिंग छोड़ के पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह पोएट के साथ भी ऐसा हुआ। His mood was changed from depression to joy by the dust of snow. So ये छोटी सी जो इंसिडेंट है उसकी वजह से क्या हुआ? वो पोएट काफ़ी जॉयफुल हो जाता है and he became happy for the remaining day. So this was all about the poet. Now let's discuss about the central idea of the poem, because we see often that it is asked in the exam. So with the central idea you will get a lot of answers, a lot of important points that will help you in the exam. So this short poem throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things. तो नेचर की जो हीलिंग पावर होती है और छोटी छोटी चीज़ों की जो हीलिंग पावर होती है हमारी लाइफ में, उसको ये पोएम दिखाती है। फ्रॉम ए बैड मूड टू एल हेल्थ, यहाँ पे एफ कैपिटल हो गया, आई एम सॉरी। तो हमारा बहुत बार बैड मूड होता है, बहुत बार हमारी इल हेल्थ होती है, तो क्या हम देखते हैं जो नेचर है वो हमारी बैड मूड को, हमारी इल हेल्थ को सही कर देती है। देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी क्योर्ड बाय नेचर। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे नेचर क्योर नहीं कर सकती है। एज वी हैव सीन द ऑथर वॉज इन अ ग्लूमी मूड एंड हिज मूड वॉज diverted by the touch of the dust of snow. So in this poem the poet appreciates the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree, as I told you earlier. The same way one can shake off the sadness from one's heart. तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज राइटर ने दिया है। क्या कहा है कि जैसे क्रो ने स्नो डस्ट को, डस्ट ऑफ स्नो को हेमलॉक ट्री से गिराया, उसकी वजह से राइटर का जो मूड है, राइटर की जो नेगेटिविटी है वो हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई
पर्सन हमारी लाइफ में हो सकता है या कोई इंसिडेंट हो सकती है जिसकी वजह से हमारे मन की सैडनेस जो है वो हट सकती है। समटाइम्स सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट नेचुरल इवेंट्स डू ब्रिंग अबाउट चेंज। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जो इनसिग्निफिकेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान भी नहीं देते, उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में कई सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। सो वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी अनप्रेडिक्टेबल एंड फ्री ऑफ ऑल प्रेजुडिस। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आए, अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब क्या होता है कि हमें किसी की चीज़ के बारे में पहले से नहीं कह देना चाहिए। प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, तो हमें किसी की चीज़ के बारे में पहले से नहीं बता देना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो। एंड फ्री ऑफ ऑल प्रेजुडिसेस, हमें किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पार्शियल होके नहीं सोचना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि हमें सभी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए एंड वी शुड बी फ्री ऑफ ऑल प्रेजुडिस एंड वी शुड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस अस। तो जैसा कि नेचर हमें जिस वे में भी ब्लेस करना चाहिए हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सो द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी हमारा एटीट्यूड लाइफ के लिए पूरी तरह चेंज कर देती हैं, जैसा कि पोएट के साथ हुआ। द सिंपल थिंग्स वी डू फॉर अदर्स कैन मेक अ positive change and it also shows that if we take things positively in our life situation do change for better। और यहाँ पे पोएट ये भी मैसेज देते हैं कि हमारी लाइफ में हम जैसा सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो चीज़ें वर्स हो जाएंगी। सो वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। वी शुड एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग विथ होल हार्टेड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। I hope that you have liked the poem and it is really helpful for your examination and it was really helpful for the notes making. So with this point this lecture is ended. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो भी नए व्यूवर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल।